اور اب آپ کو بتائیں کہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا ایران سے متعلق بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ صدر ٹرمپ ایرانی حکومت کے خلاف سٹرائک کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ لکھا گیا ہے نیو یارک ٹائمز میں۔ ایرانی سیکیورٹی سروسز تنصیبات ممکنہ امریکی ہدف ہو سکتی ہیں۔ امریکی حکام کو ایران میں کارروائی کا سخت جوابی ردعمل آنے کا خدشہ ہے۔ مزید لکھا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے کہ صورتحال میں بہتری آئے، مزید خرابی نہ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملے کے نئے آپشنز پر بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا ایران سے متعلق بڑا دعویٰ، اور اس اخبار میں لکھا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ ایرانی حکومت کے خلاف سٹرائک کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایرانی سیکیورٹی سروسز تنصیبات ممکنہ امریکی ہدف ہو سکتی ہیں۔ امریکی حکام کو ایران میں کارروائی کا سخت جوابی ردعمل آنے کا خدشہ بھی ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے کہ صورتحال میں بہتری آئے، مزید خرابی نہ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملے کے نئے آپشنز پر بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ اور اب بات کریں احتجاج اور ہنگامہ آرائی میں فرق ہوتا ہے۔ ایرانی صدر کہتے ہیں دہشت گردوں کو ملک میں داخل کیا گیا جنہوں نے مساجد کو آگ لگائی۔ امریکہ اور اسرائیل شرپسندوں کو باہر سے ہدایات دے رہے ہیں، یہ کہنا ہے ایرانی صدر کا۔ آپ کو بتائیں کہ احتجاج اور ہنگامہ آرائی میں فرق ہوتا ہے۔ دہشت گردوں کو ملک میں داخل کیا گیا جنہوں نے مساجد کو آگ لگائی۔ امریکہ اور اسرائیل شرپسندوں کو باہر سے ہدایت دے رہا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایرانی میڈیا کو انٹرویو میں کہا گیا کہ احتجاج اور ہنگامہ آرائی میں فرق ہوتا ہے۔ باہر سے دہشت گردوں کو ملک میں داخل کیا گیا جنہوں نے مساجد کو آگ لگائی۔ امریکہ اور اسرائیل شرپسندوں کو باہر سے ہدایات دے رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو فسادیوں اور دہشت گردوں کے ساتھ شامل نہ ہونے دیں، عوام شرپسند عناصر کو معاشرے کا امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہ دیں۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا ایک بار پھر ملک میں نئے صوبوں کے قیام پر زور۔ کاموکی میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا کہ تمام جماعتیں اپنا دل بڑا کریں، مسائل کے حل کے لیے صوبے بنائیں۔ آئی پی پی چاہتی ہے کہ صوبوں کا نام تبدیل نہ کیا جائے، کسی کی اکثریت ہے تو ایک کی جگہ اپنے زیادہ وزرائے اعلیٰ بنا لیں۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ صوبوں کی تعداد پر ایم کیو ایم نے ہماری حمایت کی، سیاسی جماعتوں کو اپنے خول سے باہر نکلنا ہوگا۔ ہماری پارٹی نے، ہماری جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس ملک میں ایک تحریک شروع کرنی ہے جس میں ہم نے اس ملک میں زیادہ صوبے ہونے چاہیے۔ ان مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ کے صوبے زیادہ ہوں، آپ کی ترقی زیادہ ہو، اور لوگ آپس میں مل کے اس صوبے کے عوام جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ صوبوں کے نام جو ہے وہ بالکل تبدیل نہیں کریں گے۔ ہم جنوبی پنجاب کے حق میں ہیں، ہم شمالی پنجاب کے حق میں ہیں، ہم ایک سینٹرل پنجاب کے حق میں ہیں، ہم اسی طرح جنوبی سندھ چاہتے ہیں، ایک شمالی سندھ چاہتے ہیں، ایک سینٹرل سندھ چاہتے ہیں۔ یہ جو اب کے صوبے ہیں ان کے نام ہم تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ بلوچستان کا نام بلوچستان ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ 1100 کلومیٹر کے بعد آپ کا ایک صوبہ ہو، یہ کیا مسائل کا حل ہے؟ آج مجھے ایم کیو ایم کی حمایت حاصل ہوئی، آج ہمارے ساتھ جو باقی دوست ہیں وہ بھی بہت سارے دوست اس میں ہماری حمایت شامل کر رہے ہیں، لیکن میں ساری جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ اپنی حکمران جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس سندھ میں حکومت ہے تو برائے مہربانی آپ ایک وزیر اعلیٰ کی جگہ اپنے 3 وزیر اعلیٰ بنا لیں۔ اور ہمیں یہ تو اعتراض نہیں ہے، ہم تو نہیں کہتے کہ آپ سارے لوگوں میں بانٹ دیں، اور بھائی اپنے کوئی اور وزیر اعلیٰ بنا لو، پر لوگوں کے مسائل تو حل کر لو۔ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہمیں اپنی تنگ نظری سے باہر نکلنا پڑے گا، پاکستان کو دیکھنا پڑے گا، اپنی حکومتوں کے زوم سے باہر نکلنا پڑے گا۔ سارا کچھ میرے پاس ہی آ جائے، اس سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ساری جماعتوں کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنے دل کو بڑا کریں اور اپنے صوبوں کے عوام کے لیے، آپ نے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے نئے صوبے بنائیں، یہ سب کے فائدے کی بات ہے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا پاک فوج پر تنقید کرنے والوں کو بھی کرارا جواب۔ کہا سیاست پر کسی کو اعتراض نہیں، جن کی وجہ سے سکون سے سوتے ہو ان کی تو عزت کرو۔ کیا افواج کے خلاف بولنے والا ملک کا وفادار ہو سکتا ہے؟ بھارت کے خلاف جنگ میں فتح پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی عزت بڑھی۔ دنیا آج برابری کی سطح پر بات کرتی ہے، پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم صرف امداد مانگنے آئے ہیں۔
मई के महीने में जो हमारी जंग हुई भारत से, उसमें अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। हमने उनके 7 जहाज गिराए हैं। दुनिया का बेहतरीन जहाज उनके पास था राफेल, वो राफेल हमने 4 गिराए हैं। और आज तक वो कंपनी जो है, राफेल की कंपनी जो है, वो पूरी दुनिया में बताती फिरती है कि हमारे जहाज का कोई कसूर नहीं था, वो इन्होंने चलाने नहीं आते सन। तो अमेरिका का सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो कहता है जनाब भारत के 7 प्यारे गिर गए, मैंने बड़ी मुश्किल से इनकी जंग बचाई है। आज पूरी दुनिया में उनका सर झुक गया और अल्लाह ताला ने आपका सर बुलंद कर। आज आपके पास दुनिया से ये आ रहा है ऑर्डर के जी हमें जहाज बेचे, हमें टेक्नोलॉजी बेचे। इस हमारे इज्जत में हमारे सिपा सलार ने, हाफिज साहब ने इसके लिए कलीदी किरदार अदा किया है। जब आपका सिपा सलार बहादुर होता है ना, फौज भी सारी इकट्ठी हो जाती है। जो पाक फौज के खिलाफ बोले, क्या वो मुल्क का वफादार हो सकता? सोशल मीडिया के ऊपर बकवास करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को इस मुल्क में रहने का हक होना चाहिए? जिनकी वजह से आप सब अपने घर में सुकून की नींद सोते हैं, उसकी तो इज्जत करो। वो अपनी जान दे रहे हो और तुम उसको गाली दे रहे हो, और ये कैसे लोग हैं? वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने वज़ीर आज़म से टैक्स की शरह कम करने और किसान से गंदम 4000 रुपये फ़ी मन खरीदने की दरख्वास्त कर दी है। कामोकी और गुजरावाला को मोटरवे से मुंसलिक करने का ऐलान भी किया। लाहौर सियालकोट सड़क को 6 लेन में बदलने की नवीद भी सुना दी। यहाँ पे हमारे जो किसान हैं इस इलाके में, हम उनकी तरक्की के लिए वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ पे फौरी तौर पे गंदम की जो कीमत है वो कम से कम 4000 रुपये मुकर्रर की जाए, ताकि लोगों की गंदम खरीदी जाए और लोगों की गंदम हुकूमत खरीदे, ताकि किसान को उसका मुआवजा मिल सके। और उसको जो है जो भटकना पड़ता है, जो लोगों के सामने जाके, और वो जो दरमियान में मिडल मैन है उसके हाथों जो हमारा नुकसान होता है, छोटे ज़मींदार का खास तौर पे वो ना हो सके। हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। हमारी इंडस्ट्री के अंदर लोगों का जो रोज अपना कारोबार है वो नीचे की तरफ जा रहा है और इससे बेरोजगारी में इजाफा होगा। इसमें हमारे जो नौजवान हैं इनको रोजगार नहीं मिल सकेगा। तो हमारी वज़ीर आज़म साहब से, हमारी पार्टी की तरफ से ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपनी टैक्स की शरह कम करें, ताकि लोग जो है वो अपना कारोबार बढ़ा सके। इंशाअल्लाह ताला कामों की जो है वो इंशाअल्लाह हम इसको कनेक्ट करेंगे मोटरवे के साथ। गुजरावाला को भी हम कनेक्ट कर रहे हैं मोटरवे के साथ। जो लाहौर सियालकोट की सड़क है इसको भी 4 रोइया से उठा के 6 रोइया कर दिया। ये 6 लेन की सड़क लाहौर से लेके इंशाल्लाह अब पिंडी तक जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा होगा और इंशाल्लाह ताला मैं वज़ीर आज़म साहब से कहूँगा हमारे शहर के लिए जो है वो यहाँ पे आके इसका इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह ताला। वफाकी दारुल हुकूमत में शादी वाले घर में गैस लीकेज से खौफनाक धमाका, दुल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक जबकि 11 ज़ख्मी हो गए हैं। धमाके से 3 मकान ज़मींबोस, अतराफ के कई घर भी मुतासिर हुए हैं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक धमाका गैस लीकेज से हुआ है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात का हुक्म, मुतासरीन को इमदाद देने की हिदायत कर दी है। शहरी इक़्तिदार के सेक्टर G72 में गैस लीकेज से हौलनाक धमाका। शादी वाला घर एक लम्हे के अंदर मातम कदे में बदल गया। दुल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। शेरोन और महक की गुज़श्ता रोज ही शादी हुई थी। दुल्हे की मां भी जाँ बहक होने वालों में शामिल है। 11 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। वालिद दूसरे घर में सोने की वजह से महफूज रहा। इस हादसे की वजह से काफ़ी अमवात हुई हैं, जिसमें मेरा बेटा, बहू, मिसेज और बड़ी भाभी एक्सपायर हुए हैं। जख्मी हैं, बेटी मेरी जख्मी है, सीडी हॉस्पिटल में साली है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का जाए वक़ूआ का दौरा, अलमनाक वाक़े को गैस लीकेज का शाखसाना करार दिया। मुतासरा अफराद को दूसरी जगह मुंतकिल करने का इंदिया। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने का ऐलान किया। ये गैस लीकेज की वजह से हुआ है और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से भी और मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्टर साहब की तरफ से भी ये कन्वे किया गया है कि जो भी हमने इस पूरी कम्युनिटी के लिए जो भी हम कंपनसेशन दे सकते हैं वो कम है। मैंने इनसे कहा है कि जो बाकी घर रह के उनको भी चेक कर लें, कहीं पे अगर दरारें हैं तो हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे वहाँ पे कोई रहे। अगर हमें फिल फॉर इनको कहीं पे शिफ्ट भी करना पड़े तो उसका पूरा इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिलेंडर धमाके में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर सेहत को हिदायत की को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। सेक्रेटरी दाखिला को मुकम्मल तहकीकात का हुक्म भी दिया।
इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में होने वाले धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक धमाका बज़ाहिर गैस लीकेज से हुआ। 8 अफराद जाँ बख्श जबकि 11 ज़ख्मी हुए हैं। ज़्यादातर अमवात मलबे तले दबने और झुलसने से हुई हैं। नुमाइंदा समा कमरुल मुनव्वर मौके पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। कमर साहब, धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की गई है, क्या बताया गया है इस इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में? जी, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जो है उसमें ये कहा गया है कि ये वाक़या जो है वो, क्योंकि पहले ये चल रहा था कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन अब इस बात को क्लियर करते हुए ये बताया गया है कि ये गैस लीकेज की वजह से ये धमाका हुआ, जिसमें 8 अफराद जो हैं वो जाँ बाग हुए जबकि 11 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ज़्यादातर लसने और जो मलबे तले दबने की वजह से उनकी हलाकत हुई है। ताहम इस हवाले से अब एक तहकीकाती रिपोर्ट जो है ये इब्तदाई है। मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट के लिए तमाम किस्म की यहाँ से शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं, जिसमें SNGPL के लोग और जो कि मुख्तलिफ फ्रॉन्जिक के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने यहाँ से तमाम एरिया को जो है वो सर्च किया और वहाँ से तमाम शवाहिद जो है इकट्ठे किए हैं। जिस जगह पर ये वाक़या पेश आया उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुए जबकि जो बाकी घर थे उनको भी नुकसान पहुंचे। इसी वजह से वो रहने के काबिल नहीं हैं। जो यहाँ के इनमेट्स हैं उनके लिए अलग रिहाइश का बंदोबस्त जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि जो जिन घरों के साथ मुल्हिका घर मौजूद थे वो भी मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हुए, तो इनके साथ जो घर थे उनकी दीवारें जो हैं वो उसमें भी दरारें आ चुकी हैं। इसी वजह से वो रहने के काबिल नहीं है। अब इस जगह पर पुलिस ने मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। इस गली को जाने वाला रास्ता जो है उसको भी मुकम्मल बंद किया गया है। लाशें जो थी वो पिम्स अस्पताल से अभी तक यहाँ पर नहीं लाई गई और कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद वो यहाँ पर लाए जाएंगे, फिर उसके बाद उनकी जो दुआया तकरीबात है वो यहाँ पर की जाएंगी और उसके बाद उनकी तदफीन जो है वो की जाएगी। ठीक है, साथ ही रहिएगा। DG रेस्क्यू अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया DG साहब आपका वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि अब तक रेस्क्यू का काम किस हद तक मुकम्मल हो चुका है? कंट्रोल सेंटर में तकरीबन 7:24 पे मैं कॉल हुई। इमीडिएटली गाड़ियां इंसिडेंट साइट पे मूव की गई और 5 मिनट के रिस्पांस टाइम के साथ पहले ही हमारी व्हीकल जो है इंसिडेंट साइट पे पहुंची। इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में 10 एम्बुलेंसेज और एक रेस्क्यू व्हीकल और एक फायर व्हीकल ने पार्टिसिपेट किया और इसके अलावा मोर देन 45 स्टाफ जो है उन्होंने इस अमल में शिरकत की। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 2 घंटे जारी रहा और जिसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए से जो विक्टिम्स हैं उनको जो है वो आइडेंटिफाई करके एक्सट्रिकेट किया गया और इस वक्त जो है वो ऑपरेशन जो है वो क्लोज है। तमाम जो इंजर्ड हैं या डेड बॉडीज हैं उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है और इनकी तदफीन के लिए जो है वो और या इनको नेटिव टाउन्स में शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंसेज इनको दोबारा से प्रोवाइड की गई हैं। जी अच्छा, अब्दुल रहमान साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह एक इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी तैयार की गई है पुलिस की जानिब से जिसमें बताया गया है कि ये गैस लीकेज का धमाका है, आपकी असेसमेंट क्या बताती है? क्योंकि आपने सारा यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, आप जरा बेहतर तौर पर बता सकते हैं। इसमें यह है कि मोस्ट प्रोबेबली अभी तक की जो पहली जो हमने इंक्वायर की है, इन्वेस्टिगेट की है, इसके मुताबिक ये गैस लीकेज ही है। जिस तरह का पावरफुल ये इंसिडेंट था वो इस तरह से गैस लीकेज में ही होता है और जिस तरह की ये लोकेशन है वहाँ पे मतलब ये है कि गैस की वेंटिलेशन का कोई ऐसा नहीं था इंतजाम, कंजेस्टेड एरिया था। गैस जो है आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट होती गई रात को और जब सुबह के टाइम पे दिया सलाई जलाई गई तो उससे जो है वो एक एक्सप्लोजन हुआ और इसके बाद उस एक्सप्लोजन की वजह से वाइब्रेशन जो है वो क्रिएट हुई और तकरीबन 4 छतें जो हैं वो नीचे आ गिरी। ठीक है, DG रेस्क्यू अब्दुल रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया समय को वक्त देने के लिए। ज़हीर अली खान पिम्स अस्पताल से वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़हीर अली, आप ये बताइएगा कि कितनी मैयतें यहाँ पर लाई गई हैं और तदफीन के लिए क्या अब सिलसिला अपनाया जाएगा, कब इनकी तदफीन होगी? देखिए, जो मैयतें पिम्स में लाई गई थी वो 6 थी और 2 जो मैयतें थी वो CDA हॉस्पिटल में थी और पिम्स से
3 जो मैयतें थी वो वर्सा के हवाले की गई हैं। उनको लेके यहाँ से वो एदी सेंटर मुंतकिल किया गया और उसके बाद वहाँ से फिर G7 मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ दुआया तकरीब होगी और फिर तदफीन। और जो दुल्हा था शेरून और दुल्हन जो महक, और उनकी जो मैयत थी वो वर्सा के हवाले की गई है, यहाँ से पिम्स से मुंतकिल की गई है, ज्वारा बीबी। और इसके अलावा जो दुल्हा था उसकी जो वालदा हैं सीडी हॉस्पिटल में थी, बुशरा हनीफ, और जो बहन थी छोटी अनाया, उसकी जो डेड बॉडी थी वो वर्सा के हवाले की गई, उनको भी एदी सेंटर मुंतकिल किया गया है। चूँकि दिन को ही जो इब्तदाई रिपोर्ट थी और पोस्टमार्टम था, उस रिक्वायरमेंट के बाद यहाँ पिम्स इंतज़ामिया की जानिब से वर्सा के हवाले की गई थी डेड बॉडीज़, लेकिन उनके घर मुंतजिब हो चुके थे, जगह नहीं थी और लवाकिन इस पोजीशन में ही नहीं थे। चूँकि गम से निडाल थे तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे पिम्स में रखा गया था उनको, और अब एदी सेंटर मुंतकिल किया गया और उसके बाद G7 उनको मुंतकिल किया जाएगा। और 6 बजे का टाइम बताया गया था, लेकिन चूंकि अभी थोड़ा टाइम लगा है और आज ही जो 5 डेड बॉडीज़ हैं उनको आज ही दफन किया जाएगा, जबकि 2 डेड बॉडीज़ अभी भी पिम्स में मौजूद है जिनको कल G7 मुंतकिल किया जाएगा। ये अफसोसनाक इंसिडेंट में 11 ज़ख्मी भी यहाँ पे लाए गए थे, जिनमें से 9 को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद पिम्स इंतज़ामिया की जानिब से घर जाने की इजाज़त दी गई है, जबकि एक ज़ख्मी जो हेड इंजरी है जिनको वो अभी पिम्स में मौजूद है और एक ज़ख्मी जो है वो सीडी हॉस्पिटल में मौजूद है। आपने हमें आगाह किया कि 11 जख्मी यहाँ पर लाए गए और जिनमें से 9 को यहाँ से रिलीज़ कर दिया गया है और मैयतें भी यहाँ पर लाई गई हैं, जिनकी तदफीन का सिलसिला भी अब शुरू होगा। ज़हीर अली खान, पिम्स हॉस्पिटल से आप हमें आगाह कर रहे थे। इसके साथ साथ जाए वक़ूआ से समग्र नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अफसोसनाक वाक़े पर दुल्हा की बहन और फुप्पो गम से निढाल हैं। बहन अपने भाई और भाभी को याद करके रोती रहीं। कहा, रात खुशी खुशी बारात लाए थे, लम्हों में सब कुछ तब्दील हो गया। सुबह एक ज़ोरदार आवाज़ से जागे, बाहर निकल कर देखा तो सब कुछ उजड़ चुका था। फूफी पर भी गम के पहाड़ टूट पड़े। मर गया जे वे मेरा एक भरा बचा जे, वे मेरा सारा ही मर गया जे, वे मेरा कोई माँ प्यो नहीं जे, वे जड़ मेरे भरा दे दुख वेख ले, वे मेरा वीरा वे मैं की करांगी। मेरा भरा पर जाए डा सोना लगा डा सोना लगांदी अबे मेरा ते 2:30 बजे अपने आके ये बराबर जाइनो मैं की करूं पता नहीं भाई ऐसे तो सुबह आवाज नहीं उठे हैं ते वेखिया ते सारा कुछ ही उजड़ गया भाई, सारा कुछ उजड़ गया। साडा उन्हां दा भी पहला विआह ना दी वड्डी थी, हाय मैं मर जावां।